ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਵਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਉਹ ਭੜਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਲਿਓ, ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਰੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਰੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਝ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਲਈਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਜਾਜਨ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨ ਗੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਚਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀਸਸ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜੀਸਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਬਾਏ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਸਸ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਤੋੜਨੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਗੜਿਆ ਕਿੰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ 10 ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਉਹ ਦਰਬਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜੇ, ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ। ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ 5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, ਮੈਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬغیر خون بہائے تو, بغیر خون بہائے تو زنا جیسا
ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡੇਵਿਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਂਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਖੁਦਾ ਬਗੈਰ ਖੂਨ ਬਹਾਏ تو ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਸਸ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋੜਨੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਹਾਲੀ ਫਰੀ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਲਫਾ ਭਾਈ? ਡੇਵਿਡ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਲੌਠਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਖਾਨ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਖਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ जी जी मैं कह रहा समीर भाई, मैं मैम जब भी बोलना था मौका देता है कि ओकी बोंगी मार देने, तो इस वजह तो मैं जरा ना जी अल्फा साहब तो सुनो ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। अच्छा पहले तुसी यह गल की है कि डेविड को सज़ा मिली है, ठीक है। अच्छा अगर इस तरह सज़ा मिलती है ना तो फिर तो पूरी दुनिया का ही कानून जरा ना वो धर्म भरम हो जाता है। मिसाल के तौर पर यह मिसाल देने वास्ते कह रहा, मिसाल के तौर पर किसी चूड़े की बेटी की शादी होई गई किसी बंदे नाल, उसका दामाद किसी होरी औरत नाल ज़ना करता है, ठीक है। वो बजाए जिस नाल ज़ना करता है उस औरत नू और जरा ज़ना करने वाला यानी कि उसका दामाद, उसनू सज़ा देने के बजाय उस चूड़े की बेटी नू सज़ा दे दी जाती है, यानी कि उसकी बेटी नू सरेआम छत ते ले जाया जाता है और उसके साथ ग्रेप किया जाता है। तो मैं हुण दसो भी यह इंसाफ पसंद सज़ा है या जाहिलियत वाली सज़ा है? पहली तो इस गल का जवाब दो। दूसरा गल है तुसी यह की है कि भाई डेविड का बेटा मार दिता गया है, तो इस वजह तो डेविड को माफ़ी मिल गई, ये भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि डेविड का बेटा जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं इस गुनाह नाल, उसको मार दिता गया। तीसरी गल ये है कि जेड़ा मेरा मेन सवाल है ना वो यही है कि डेविड जेड़ा कानून तोड़ है, हालांकि बाइबल का कानून तोड़ना, ठीक है, वो जेड़ा खुदा है वो इतना सख्त है, वो आंदा जेड़ा मेरा कानून तोड़ सी वो बिल्कुल फारग है। एक तरफ डेविड सारे कानून तोड़ रहा है लेकिन उसको फिर भी माफ़ी मिल गई है, बगैर खून पाए तो बगैर कुछ किए तो उसको सज़ा नहीं मिली, ना बदसबा ने सज़ा मिली। इस जहनी रख के गल करनी है, बदसबा ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ? ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ? ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਵਸੀਮ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਸਬਾ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ, ਬਦਸਬਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ? ਬਦਸਬਾ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਬੇ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਵਸੀਮ
वसीम केड़े खानदान नाल तेरा तल्लक है? भाई साहब थोड़ा ठीक से बात करिए। हाँ, इस तरह मेरे आके हमारी ठीक बोर्ड में हमारे भाई के साथ है। डिस्रेस्पेक्ट करना, बात करना तो ठीक से बात करें। भाईजान मैं ठीक से बात करूंगा, पर ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वसीम भाई आप जो है वो मुझे बता सकते हो आप किस खानदान से हो? नहीं, किस तरह आपको का नाम सवाल बताओ। हुआ भाई? अच्छा, अच्छा, पूछना क्या चाह रहे हो, मकसद क्या है ये बताओ। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ, क्या इस्लाम में कहीं भी ये इजाज़त है कि आप असाइयत पे जो है वो कोई इल्ज़ाम लगाओ? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की है, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सिंपल सा सवाल है, आप शादीशुदा हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं। ज़बरदस्त हो गया। बेटियां हैं माशाल्लाह? पीछे तो मंदिर है। 2 बेटियां 2 बेटे हैं। ज़बरदस्त, गुड। अच्छा मैं यहाँ पे एक कड़वा सा सवाल कर लूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? चर्चेस ही अलग अलग बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग चर्च सब। अच्छा आपकी बेटी पे कोई इल्ज़ाम लगा दे ज़ना का, तो आप क्या करोगे? क्यों तो लगा क्या दें? बैठ जाओगे? क्या वो कोई जाहिल है, पागल है? हाँ जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की। तो चलो आपने यहीं पे जो है ना मेरा जवाब दे दिया कि अगर आपकी बेटी पे इल्ज़ाम लगता है तो आप ये उसको कह रहे हैं कि वो जाहिल है या पागल है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि ये जो क्रिश्चियन है ना, ये जाहिल और पागल ही है। इन्होंने अंबिया कराम पे वो इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर इनकी हम जब किताब पढ़ते हैं तो इस वजह से हम जो है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब नहीं है। वसीम अब आप साथ बताएं। चाहिए। इसके बाद आएगा कि इसे 2 ही माह से, इसके पहले मास नहीं था, इसके हमारी बाद किताब के मुताबिक बिल्कुल सच है। नहीं, आप गलती पे ना अकड़ो। मैं नहीं जानता आप कौन हो। मरज़ई जो है ये मैंने अक्सर देखा है, मरज़ई जो है ना ये करते हैं कि ये अपने आप को ये जो मसीह आदमी भी से बहुत बोलते बड़ा हैं। लैंड या उधर से लेकर पर एकदम एंड तक मसीह जो है वो झूठा नहीं है, प्रॉपर्टी थोड़ी दे, ठीक है? खाली तुमको मिलना ही दे। किताब में रद्दो बदल की गई है। वो कुरान को भी चेंज करने के चक्कर में घूम रहा था। इसकी तो शारा मुसलमानों ने पकड़ ली है। नहीं भाई, हमारी किताब नहीं है इतना। छोटा छोटा है। लास्ट राइटर भाई, हमारी किताब बाइबल मुकद्दस कोई चेंज है? आप बताएं कहाँ से चेंज हुई? हम लोग का अंदर का रूम है नहीं ना, हुई वो चेंज, बोलते ठीक है? वो हज़रत आता ईसा है, अलैहिस्सलाम जो है खटिया रखा वो है। नहीं, हम आसमानों नहीं मानते पाएंगे। अरे भाई, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, हम यीशु और मसीह को मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का और यीशु और मसीह का कोई दूर दूर से तल्लुक नहीं। प्रेम दिखता है ना, आप मानते हैं एक है? कानों में ना तो मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि मरज़ई मुझे इनवाइट क्यों करते हैं? पिछले मास मैं में मरज़ई भाई नहीं ये हूँ। कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ ऐसे मुसलमान था, ऐसे हाँ। अच्छा पहले चलो, उसने ना मैं डर के मसीह से- पूरे रिक्वेस्ट मिल लिया। तो अब मत जाओगे क्या वो बात जो पहला में छोटा रहने का जो ना ना क्यों किया आपने? इनवाइट क्यों किया? सवाल बन गया है ना, जवाब दो। हाँ। तो उन लोगों के साथ में घूमता था सही वाला बात है। हम्म। हेलो, किस आपको भाई ने इनवाइट किया है? तो यार नीचे गिरा दो इसको, नीचे गिरा दो। भाई किसने इनवाइट कर मैंने दिया? नहीं पहले उठाया भी मेरे को कि- पसंद था। चलो नहीं, ड्रॉप भाई कर दो आप इसको। अराना भाई को खड़ी- किसने आपको इनवाइट गलतफहमी हो रही है, किया? आप गलत जो है ना आपको तस्वर मिल रहा है। अच्छा, ऐसा पहली तो बात ये है भाई, घड़ी-घड़ी हाँ पहली देखो बात ये है मरज़इयों, मैं खुले अल्फाज में खुली बात बात सुनो पहले। मेरा हेलो। नाम है सदाकत सबका। हेलो। कुछ ऐसे हेलो, अल्फाज हेलो, मत हेलो। कहना, कुछ ऐसे हेलो, अल्फाज मत हेलो, कहना, हेलो। ये सब मुसलमान है। मरज़इयों हेलो। को मैं मसीहों की बेइज्जती पानी नहीं चाहिए? करने दूंगा। अच्छा मेरे भाई बात सुनो। यहाँ पे कोई क्योंकि- मर्जी नहीं है। लास्ट भाई हेलो, अस्सलाम अलैकुम शुक्रा भाई। एक भाई ये क्या? सुल्तान की सिटी में क्या कह रहे हो यार? मैं वही कह रहा हूँ कि लास्ट अस्सलाम भाई वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मरज़इयों को घरों से ढूंढूंगा और मसीह की वो ये बेइज्जती सारे यहाँ नहीं पर सारे करने दूंगा। मुसलमान हेलो भाई हेलो हैं। लास्ट भाई वो यहाँ बात पर सुने। मुसलमान सारे यार हेलो, गलत हेलो। फहमी का शिकार हो।
लास्ट एक बात बात सुनो, बात में आप प्लीज जो आपकी डायलॉग मेहरबानी। याद करके आए हैं, आप जो डायलॉग याद करके आए मेरे भाई, अगली ब्रॉड पे सुना दे। यहाँ पे सारे मुसलमान है, कोई मरजाई नहीं है। मेरा भरा किसी किताब तो वेख के पढ़ ओ लिया कि यार यही तो पंगा है ना, मरज़ई खुद को मुसलमान बोलते हैं। अरे अरे भाई जमीन मैं आपको नहीं जानता, जी पुराना चावल हूँ मैं। तो फिर वो लोग आते तो जैब बजाते ओ थे। भाई हम आपको भी नहीं जानते, आप गलत ब्रॉड पे बैठ अच्छा गए हो। चलो ठीक है, मुझे आपकी बात- आइंदा से इनवाइट ना करना। मैं मरज़इयों से नफरत ऊपर करता हूँ वाला क्योंकि ये मेट्रो का है। अल्लाह हाफ़िज़। की अंदर की बना जी जी कैसे अल्लाह कैसे दुनिया में अल्लाह लोग पाए जाते हैं, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। कैसे कैसे दुनिया में लोग जैसे अपना कोई नहीं, वो वेस्टर्न छोटा सा सेंट्रल एक तीन लाइन नहीं है, जंप इधर आ एक ही गया था लाइन ब्रॉड है। से, तो और एक खत्म हो गया। हाँ दूसरा जी, छोटा अल्फा वाला भाई जो वापस बीच आए, से इधर connect कन्वर्सेशन होता है। शुरू करें, चले। जी जी अल्फा साहब ने एक कहा है कि बदसबा के साथ ग्रेप हुआ है, तो बाइबल में कहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके साथ ग्रेप हुआ? दाऊद ने किसके साथ किया था, क्या नाम? हाँ ये वाले बस अच्छा वो ग्रेप था या रजामंदी थी? ग्रेप। पूरा सामान नीचे जाता है आराम से कहाँ बैठने से का साबित करें? सर वर्ड रेस में यूज करें, वर्ड ग्रेप करें। नीचे ना ग्रेप ग्रेप उस टायर के उधर जैसे अपना उसने गोल का उठवाया पैसे था रहते उसको वैसे ही घर से। रहता है। और कम पैसे लगते हैं हम साबित करें आप। लोग कुछ तो 40 दिरहम देते हैं इधर से अबू धाबी तक जाने के लिए। उसने अपने बंदे भेज कर उसने वो भी एयरपोर्ट के एकदम दरवाजे के बुलवाया बाहर था, रखता है। बुलवाया था। उठवाया, बुलवाना रोड और क्रॉस होता कुछ नहीं करना है। पड़ता। ना बुलवाना और होता है, उठवाना और होता है, ठीक है। और उसमें उसकी रजामंदी भी शामिल थी। नहीं, रजामंदी कैसे शामिल थी उसकी? रजामंदी होती तो खुद आ जाती। ऐसे थोड़ी होता कि उसको देख रहा था तो उसको बस उसका दिल आ गया तो जनाब वो चल के उसके पास आ गई। रजामंदी तो इसको कहते हैं, बंदे भेज के उठवाना और चीज़। ना उठवाने का लफ्ज़ आप वहाँ पे दिख रहे हैं। ये तो बात देखे ना, ऐसी होती है मेरी बात बुलवाना ही सुनो, उठवाना। मेरी बात देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात अगर सुनो। आप मेरी अगर बात आप सुनो। अगर आप किसी मेरी कानून के बात- साथ अगर आपका कोई ताल्लुक है, आप किसी को कहते हैं जाओ उसको उठा लो, वो आगे जाके क्या कहते हैं कि ठीक है चलो भाई तुम्हें साहब बुला रहे हैं। ऐसी होती है बात ना। अच्छा, उठाने में और बुलाने में, कासिद भेज के बुलाने में फ़र्क होता है। नहीं, इतने याद भी अच्छी जब तरह SHO जानते हैं। साहब बुलाते यहाँ पे हैं वो तो ऐसे ही कहते हैं ना कि एक- जाके इसको ले आओ भाई। वो क्या कहते हैं जाके दरवाजा, आए जी आपको साहब बुला रहे हैं, आप हमारे साथ चलना हो, तो उठाना ही होता है। शाम को अल्फा 5-6 भाई बजे चीज़ है। ले जा सकते हमने हैं। मूवी में देखे हैं, शक्ति कपूर अक्सर उठा के लेके जाता है, वो पिंड का चौधरी भी होता है। यार वो आप देखिए आप व्यू की बातें किधर कर रहे हैं यार, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात करें। वो उठवाई गई है। आप पुलिस वाले की बात यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हैं सर? आप भी कोई कॉमन सेंस की बात करें। ये तो बादशाह की बात वहाँ है, पे एक जो सिस्टम लिखा हुआ निजाम है, की बात हो रही है, आप वहाँ पे मूवी की जो बात कर लिखा रहे हैं। हुआ है सर, वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो नहीं, पढ़ें। निजाम तो निजाम अदल की बात हो रही है ना, तो उसमें निजाम अदल में क्या पुलिस हिस्सा नहीं है? मूवियाँ किधर से आ गई बीच में? अच्छा मूवियों में आप पिंड निजाम में अदल को मूवियों से मूवियों में लेते हैं, पिंड में मुझे चौधरी बताएं। नहीं होते। नहीं, पिंड का चौधरी नहीं चौधरी होते। मूवी में किधर आ गया जो बताएं? चौधरी जो होते हैं वो नहीं नहीं होते हैं, आता, किधर आ गया? आपको मूवी में किधर आ नहीं, वो गया? फैसले करते हैं कि वो नहीं करते? मूवी में किधर आ गया? सर वो फैसले करते हैं कि नहीं करते पिंड के चौधरी? ऐसे ही अच्छा, मैं जवाब कुछ भी वो ना। चौधरी मैं फैसले मुझे थोड़ा करते हैं। टाइम ये देखिए दीजिएगा। सर, मुझे तो किसी सवाल का जवाब नहीं देता ये बंदा, पता नहीं क्या बिल्ली देख के ही इसको घबराहट शुरू हो जाती है। वो असल में संडे एक दिन छुट्टी हो, ज्यादा देरी भी रहती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। नहीं नहीं, आपके पास कोई कहानी नहीं, मुझे बताएं उनका कोई इश्क मशूक अच्छा। चलती रही हो, कोई लव लेटर अच्छा, होगा, बहुत ज़बरदस्त। वो आपस में उन्होंने बहुत कोई नैन ज़बरदस्त। बटक्का किया हो, कुछ बताएं उनका आपस में क्या बहुत ताल्लुक था। ज़बरदस्त। हाँ जी जी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जाने दे संडे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान या कोई भी बादशाह, किसी भी मुल्क का बादशाह, उसने एक दूसरा भी चलें आप दूसरा- पाकिस्तान से मिसाल दें, लेकिन मैं नहीं है ना, ठीक है, आप इसके लिए किसी दूसरा तरीके के हॉस्पिटल साथ वाले लेके शायद ना आप भी पाकिस्तान क्लिनिक रहता है ना, हाँ वज़ीर आज़म टाइमिंग पाकिस्तान देते थे खाने क्या का। नहीं, नहीं, मैं इंडिया से हूँ। हो जाता को है उठवा सकता है? 5 बजे से अच्छा, मैं इंडिया इंडिया से से यह से बताएं, लेकर 10 बजे क्या तक। मोदी क्या इंडियन आर्मी चीफ की वही मूवी कर उठवा रहे। सकता है? मुझे नहीं पता, सही बात है इस बात का, उठवा सकता है कि नहीं, आप बताएं। नहीं, आप बताएं ना। अभी आपने एक मिसाल दी ना, SHO जो है ना किसी को बुला सकता है, तो मैं आप हमारे यहाँ भाईजान जमहूरियत है, आपके यहाँ डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ उठवा सकता है जी। ये छोटा हॉस्पिटल है मम्मी। और वो बोलता है क्या फिक्स ऐसे ही है। हाँ हमने अपने जो आर्मी चीफ है उसको पाँव की जूती पे रखा हुआ है। नहीं मिला तो फिर आपने अपने आर्मी चीफ को सर का ताज बनाया हुआ है।
हम तो जिस वक्त दिल करता है अच्छा, रिमोट का बटन यहाँ दबाते पे- हैं और हेलीकॉप्टर ही गायब हो जाता है। अच्छा शाम को वो ब्रिज यहाँ से पे उतर ना- के वो साइड आने के लिए 40 मिनट लगता अच्छा है यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ट्रैफिक की वजह से, इसलिए बस मैंने सभा जो है ना जॉनसन को कोई आम औरत जॉनसन को बोला मत आ। बस सभा जो है ना फिर जो बेफिजूल का डेविड का मतलब जाने मतलब छोड़ने के टाइम पे नहीं, लेकिन वापस जाने के ये टाइम सपा सलार और आपने मुझे टाइम लगता दिखाना है, है। वो इसका और जब फौजी था। बस सपा सभा- सलार दिखाएं जरा। मैं सपा उनको सलार, बोल सपा लेता सलार। क्या शाहजहां जी दिखाएं जी, 8 वर्ष बजे दिखाएं। निकलेगा तो- ना, तो इतना ट्रैफिक नहीं जी रहता वो जब मैं भी दिखाऊंगा, घुसता। वही वैसे ही मैं थोड़ा दिखाऊंगा जैसे आप अभी दिखा रहे हैं कि उसके 6 साथ बजे ग्रेप 7 बजे तक मैं आपको दिखा दूंगा। मैं तो हाँ, अभी लेकिन जो फिर है भी ना बोली दिखा ना नहीं उस सकता दिन। हमारे हाँ, लेकिन पुलिस अभी अकादमी इतना में मैंने हम लोग जल्दी भी गए थे ना उनके घर पे, अच्छा, इतना दूसरी टाइम बात अच्छा नहीं ये है लगता। कि हम लोग भी आराम क्या से करते यार हैं, एक बात करते हैं, हरम भी तो सब की है। बस सभा जो है ना उनकी आम औरत की थी, वो सब सलाह आपने थोड़ा पहला मीठा तो ये। खाया करें, वो आम दूसरा ये ये वो आम है फौजी की आदमी बीवी थी। अपन ऐसे जाएगा बोल के, नहीं तो वो लोग को आराम ही चाहिए। नहीं आम लेकिन फौजी वही की बोर हो बीवी जाते थी। हैं। आप दोबारा देख वो लीजिए। छोटी वाली देखा अच्छा ना, दूसरी वहाँ बात पे ये है डैडी कि जब उसका शोहर वापसी आता है लेकिन वो वैसे बोर हो जाते हैं पूरा ठीक है दिन, क्या ना, करेंगे वो अपने पूरा शोहर से दिन। कोई जिक्र ही नहीं करती इस बारे इस- में। वो शोहर आता है उसके साथ कहा रहता जाता है भी जिस है, काम कोई को जिक्र नहीं वजह से। करती इस बारे में कि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। या तो अब सब भाई ये वो बताएं शोर का कि सारा अगर कोई टाइम ही बीवी कि जिसके वो शोर साथ का रेप सारा हुआ टाइम है, ही वो दाऊद ले लेता है, उसको घर जाने नहीं देता। ठीक है, उस बेचारे से इतना जुल्म करता है। नहीं जाता वो है, एक थोड़ी देर के लिए जाता है, वो कपड़े उठाता है, जाता उसको है, क्या बताती जाता कि है, मेरे साथ जाता क्या हुआ है। ये जाती है आप। जाता है ये अच्छा, बादशाह के साथ आप जाती यहाँ क्या? पे एक मुझे एक, सारे भाई एक सिंपल सा सवाल का बंदे जवाब का दें जुर्म जो है कि अगर उस औरत पे किसी क्यों औरत डाल के रहे हैं? साथ जबरदस्ती हुई हो, थैंक यू। मैं भी सारे भाइयों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि अल्फा भाई जो है ना इधर उधर की लगा रहे हैं कि अगर किसी औरत के साथ ये सीन हो जाए तो जब उसका शोहर आएगा वो सबसे पहले उसको ये चीज़ बताएगी या नहीं बताएगी। जी सारे भाई मुझे ना इस सवाल का जवाब अगर तो बारी माइक खोले यार। देखिए नसीम भाई, अगर तो उसके साथ ये काम हुआ है और उसकी मर्जी के बिना हुआ है, ठीक है, वो पहले शोर मचा के बंदे बुलाएगी, इकट्ठे करेगी, लोगों को बताएगी, कार आउन तक आप ही मालक तक खबर पहुंच गई होगी यहाँ पे काम हो चुका है, तो अपने शोर को भी बताएगी। दूसरी बात है, अगर वो अपनी रजामंदी पे या ये सीन चीज चल रहा है ना, ये उरा परा सीन चल रहा है, ये तो छुपाएगी, ये तो माड़ा माड़ा छुपाएगी, दसना नहीं, दसना बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि जो डेविड बादशाह है ना, अब उस बीवी को हासिल करने के लिए, उसकी यानी कि बीवी को हासिल करने के लिए उसको जंग में भी भेज देता है, बुकिंग ठीक है। बुकिंग अब बीवी ये भी नहीं उसको बता रही कि भाई तू उधर ना जा वरना वो तुझे मरवा देगा। मतलब दोनों की रजामंदी थी, मैम बुकिंग है, वो आपका औरत की बुकिंग है? रजामंदी थी, डेविड की भी रजामंदी हाँ थी। रुकिए वरना तो वो इतने शोर पे लाजमी बात है भाई, जिसके साथ ग्रेप हुआ हो और उसका शोहर को कहीं ऐसी जगह भिजवाया जा रहा हो जहाँ पे वो मर जाएगा, तो उसकी बीवी रोकेगी नहीं, है तेरे साथ गलत कर रहा है तुझे इस तरह। लेकिन वहाँ पे कोई भी इस तरह का सीन नहीं है। वहाँ पे जो है ना उसको शोहर को जब मरवाने के लिए वो भेजता है कि भाई इसको जो है ना ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे ये मरे, जिंदा ना बचे। यानी कि कत्ल का भी उसमें डेविड जो है ना वो कातिल भी है, ज़िना भी कर रहा है, और बीवी जो है ना वो आगे से मतलब कोई रिएक्शन जाता दे है ही कोई। नहीं रही, यानी कि जिसके साथ ना ये छोटा मोटा हो उसके जाता। असरार की बात कर रहा हूँ, उसकी बीवी कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही आगे से। हाँ ना 7-8 वो बता मिनटों में रही पहुंच है, जाएंगे, ना जो खैर है है। उसकी रोक टोक कर हाँ, रही वो है। हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? साफ साफ मतलब है कि वो उसमें उसकी वो रजामंदी थी, वही है ना, वो जो अपने लास्ट शोहर को में आता मरवाने है के लिए भी बुला तैयार हो गई और ये सब। अफीन जो है। तो लिहाजा अल्फा भाई यहाँ पे जो है ना बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं कि उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी, उसके साथ ग्रेप हुआ है। तो ये मेरा फिल्म को चैलेंज है कि ये दोबारा पढ़ लें और से पढ़ लें। वहाँ पे कहीं पे भी जो है ना ग्रेप का लफ्ज़ या वहाँ पे कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि ग्रेप हुआ है। रजामंदी थी, बिल्कुल रजामंदी थी। और फिर उसके बाद वो उससे शादी भी कर लेता है, ठीक है, बाद में उसके शोहर को मरवाने के बाद। और वहाँ ये से टोटली रजामंदी के साथ ही जा चल रहा सकते है, हैं हाँ व्यू एट द सही है। वो तो यहाँ पे टैक्सी अल्फा से भाई ही जो है जाना ना होगा। बिल्कुल ही वो पॉइंटलेस बातें कर रहे हैं, मतलब जिनका कोई तो की नहीं बनता। तो यानी अल्फा भाई पॉइंटलेस सवाल आप कोई बातें नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो है उनका को आपस में इश्क मिशुकी चल रही थी, ठीक है, कोई आप सबूत एक भी नहीं पेश कर सके, सारे आपने अपने मुंह की बातें की हैं, ठीक है। मैं पढ़ के बता देता हूँ, 2 शमूएल, ठीक है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है,
जब मौसम बहार में जब बादशाह जंग करने निकलते थे तब दाऊद ने युआब को अपने सरदारों और सारी बनी इसराइल फौज के हमरा भेज दिया। उन्होंने अमोनियों को हलाक किया, रब्बा का मुहासरा कर लिया, लेकिन दाऊद यरूशलेम में ही रहा। एक शाम दाऊद बादशाह अपने पलंग से उठकर महल की छत पर टहलने लगा। उसने छत पर से देखा कि एक औरत नहा रही है। औरत बड़ी ही खूबसूरत थी और दाऊद ने उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए किसी एक अहम शख्स को भेजा। उस आदमी ने आकर बताया कि वो बदशबा है जो अलियाम की बेटी है, खत्ता और या की बीवी है। तब दाऊद ने अपने कासों को भेजकर उसे बुलवाया और उसके पास आ गई। वो उसके साथ हम बिस्तर हुआ, फिर वो वापस चली गई। वो औरत हामला हो गई और उसने दाऊद को खबर भेजी कि मैं हामला हूँ। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि उन्होंने आपस में लव लेटर किया हो। उसने एक उसके साथ ज्यादती की, उसने बता दिया कि हूँ तगड़ा रवि भाई। लिहाजा दाऊद ने युआब को ये पैगाम भेजा, हत्ता और या को मेरे पास भेज दे। युआब ने उससे दाऊद के पास भेज दिया। जब ओरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे युआब का खैरियत पूछी और ये भी कि सिपाही कैसे हैं और जंग कैसी चल रही। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा, अपने घर जा, अपने पाँव धोकर आराम कर। ओरिया महल से चला गया और बादशाह की तरफ से उसके पीछे एक तोहफा भेजा गया, लेकिन ओरिया शाही महल के मदखल पर ही अपने मालिक के सब खादमों के साथ सो गया और अपना घर ना गया। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि वो जनरल था या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, कहीं नहीं है। वो नौकरों के साथ जैसे ही था। जब दाऊद को मालूम हुआ ओरिया अपने घर नहीं गया तो उसने उससे पूछा, क्या तू अभी फौज मुहिम से नहीं आया? तू अपने घर क्यों नहीं गया? ओरिया ने दाऊद से कहा, अहद का संदूक और बनी इसराइल और यहूदा हैमों में रहते हैं और मेरा आका युआब, अब उसका आका भी है युआब, और मेरे मालिक के आदमी खुले खेतों में डाले हुए हैं। भला मैं किस तरह खाने पीने और अपनी बीवी के साथ सोने के लिए घर जा सकता हूँ? आपकी हयात की कसम मैं ऐसा काम नहीं करूँ। तब दाऊद ने उससे कहा, एक दिन और यहाँ ठहर और कल मैं तुझे वापस भेज दूंगा। इसलिए ओरिया कल मैं तुझे वापस भाई म्यूट कर ले जरा, माइक से आवाज रिपीट होके आ रही है। रूही ये म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। इसलिए ओरिया और उसने अगले दिन भी यरूशलेम में रहा और दाऊद के बुलाने पर इसने उसके हुजूर खाया पिया और दाऊद ने उसे खूब पिलाकर मतवाला यानी कि नशे में कर दिया। लेकिन शाम को ओरिया अपने मालिक और हादमों के दरमियान अपनी चटाई पर सोने के लिए बाहर गया और अपने घर ना गया। हादमों के दरमियान अपनी चटाई पर सोने के लिए बाहर गया और यार नु क्यों चुक रहे हो बार बार? तुसी चले थले पाओ जेड़ा भी तो रूही इसको ना प्लीज पिकअप करे, थैंक यू। माइक ही म्यूट कर। सुबह को दाऊद ने युआब के नाम एक खत लिखा और उसे ओरिया के हाथ भेजा। इस खत में इसने लिखा, ओरिया को महाजे जंग की अगली सफ में रखना जहां सख्त लड़ाई हो और फिर उसके से पीछे हट जाना ताकि वो बुरी तरह जख्मी हो और अपनी जान से हाथ धो बैठे। लिहाजा जब युआब ने शहर का मुहासरा कर लिया, इस शाम के टाइम गया, ठीक है, वो भी उन्हें जान नहीं दिता थी, ये तो घर पहुंच ही नहीं बंदा, वो तो लड़ाई तक पहुंच गया। इसमें आपको वो बंदा नजर आया और या कि वो अपने घर में गया? वो वसीम भाई पढ़ने गए हैं, वो आते हैं सर आपको बताते हैं। वसीम पढ़ लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਹਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ। नहीं सर, बड़ी मेहरबानी, मैं जो पढ़ना होता मैं वो पढ़ लेना होता। अच्छा, अभी आपने ये पूरा कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है ना? आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे,
جی وسیم بھائی آپ پیش کریں. ابھی وسیم بھائی آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا آپ کے مذہب میں شراب حلال ہے یا حرام؟ سب جائز ہے جی. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ ماں مریم کے کہنے پر ہی شراب بنائی تھی. پریز دی لارڈ. جی کیسے اس کو آپ حرام؟ یہی تو بات ہے، لوگ اسی لیے تو مسیحیت کو چھوڑتے نہیں ہیں. جی آپ کے مذہب میں پابندی ہی بہت ہے سر. نہیں اچھا، وہ عابد بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو وہ جیزس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا خون بھی پیتے ہیں، وائن کھاتے ہیں جی، سارا کچھ کرتے ہیں. ہاں جی. ارے واہ. اور دیکھیں اتنی برکت ابھی تک ختم ہی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو داؤد کی بیٹیوں نے کیا تھا، سوری داؤد کی بیٹیوں نہیں، کیا نام ہے ابھی، سوری لوط کی بیٹیوں نے، تو وہ تو پھر ٹھیک کیا نا انہوں نے. سر آپ بتائیں، اگر آپ کسی پہاڑ پہ رہتے ہیں جہاں کوئی بندہ نہ ہو، نہ بندے کی ذات، ٹھیک ہے، تو آپ کی اگر بچی ہوں تو کیا آپ ان کو کنویں تک دے دیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ نہیں جی، پھر لوط کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ بھئی میری تو قوم وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی ہے. نہیں، ان کو میں پلا دی گئی تھی. ان کو میں پلا دی گئی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ باپ تو بیٹی سے شرم کر رہا ہے، لیکن اب بیٹیوں کا کیا کردار ہے؟ دیٹس اوکے. انہیں تو کھمبا چاہیے نا اوپر نوچنے کے لیے، سیانی بلی کھمبا نوچے. صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کریں وہ؟ اگر ایسی تھی تو پھر ان کے اوپر کیوں نہیں عذاب آیا؟ تو بتایا تو ہے نا ان سے، وہ امونی موابیوں سے تو ہمیشہ خدا کی لڑائی رہی ہے، جو آگے 2 نسلیں چل رہی ہیں ادھر سے. آپ دیکھیں گے کہ انہی نسلوں کو پلید کہا گیا ہے. دیکھ لینا، اس کو اون نہیں کیا جا رہا. گناہ ہو رہے ہیں لیکن گناہوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن آپ تو بڑے جھوم کے اپنی عبادت میں اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں، تو اس کلام پڑھتے ہیں، کو سارا کچھ کرتے ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہماری کسی کیتھولک مسیحی بہن کو کوئی بندہ نہ ملے تو باپ کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے دور میں ہر جگہ بندے ہیں تو ضرورت نہیں پڑتی نا. سر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بائبل کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا نا، وہاں پر تو ایسی باتیں نہیں لکھی ہوئی جس طرح آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. ارے کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ نکالیں پیدائش کا باب نمبر 9. وہ چلو میں کر لوں گا. یہ میں نہیں کار نہیں لوں گا، نکالیں، میں بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو. میں مکاشفہ کی 2 پڑھ رہا تھا ابھی، اس پہ تو کچھ اور ہی مسالے اس قسم کی باتیں، مطلب اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی اتنی بری نہیں ہوں گی، بری بھی، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے ذرا سناتا ہوں. جس کا لکھا کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھ کے آگے شعلے کی مانند اور پاؤں خالص پتل کی مانند ہے، ہمیں یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہے، پر مجھے تو اس سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت عزیل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو آرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. پھر آگے اس نے کہا کہ میں نے تو اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ آرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی. دیکھ میں اس کو بستر پہ ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتا ہے اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کرے تو اس کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے ساتھ فرزندوں کو بھی جان سے ماروں گا. یہ سب گلیسیوں کو معلوم ہو گیا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا ہی ہوں. میں تم میں سے اس کے کاموں کو موقف میں بدل دوں گا، مگر تم تھوڑیا اس قسم کے باقی لوگوں سے جو اس کی تعلیم کو نہیں مانتے، ان باتوں سے جنہیں شیطان کی گہرائی. ارے بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں طارق بھائی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بائبل ٹھیک ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی لکھی ہوگی باتیں. یہاں پر رسولوں کا بھی ذکر اس میں لکھا ہوا ہے، خداوند کا بھی ذکر ہے. خدا اور بیٹے کا ایک علیحدہ سلسلہ ہے. خدا ایک علیحدہ ہے، بیٹا مسئلہ اس کا اس طریقے کا ہے جس طرح کوئی بھی اچھا کام کرنے والا ہو نا، ہم مسلمانوں میں بھی، تو ہم بھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، وہ اس طریقے سے وہ بیٹے کا لفظ یوز ہوا ہے. بیٹا روحانی وہ طریقے کا یوز لفظ نہیں ہوا کہ جس طرح ہمارے بیٹے ہوتے مثال ہے.
काम की मुनासबत से वो जो ये खुदा अब मुझे नहीं पता कि आप उनको कैसा बेटा समझ रहे हैं, ठीक है, लिखा है, ठीक है, खुदावंद खुदा की रूह जो कुदूस है वो मुकद्दसा माँ मरियम के ऊपर चढ़ गई, ये लिखा है। उसकी बरकत से खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए। अच्छा हमारा ये तो हमारे ये मानना। अच्छा हमारे कुरान में भी थोड़ा सा एक मैं बता दूं, मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें भाई कुछ मैं तो- देखिए मेरी बात सुने, आप ना अपनी प्रीचिंग अपने पास रखें, नहीं, कुरान एक- पाक की यहाँ एक- बात ही नहीं हो रही, उड़ता नहीं, ती नहीं। लेने वाली बात है। नहीं मैं मैंने और कुरान बात से कर कोई रहा हूं। सवाल पूछ लिया तो आपको पता नहीं चलना उसमें। ना मैं वो बात ही नहीं कर रहा, जिस तरह आपकी बात का एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, जिस तरह आपने तो किया कुरान ना, पाक से आप मुझे देंगे जवाब। नहीं जाने जी, बंदे नहीं बता उसमें एक मुझे गलत बात लगी है उसमें, पता क्या वो क्या गलत बात लगी? वो आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी वालों ने निकाली है उसमें से वो गलत बात कि नहीं वहाँ आपको पर वो गलत बात लगी है कुरान पाक में और आप हमें बताने लगे, ये देखें ये नहीं, चेक नहीं, करें जरा नहीं, तारा। आपके आदमियों ने बताई है, हमें नहीं गलत लगी। अच्छा वो हमने हमारे पूरा आदमी जो बात करते हैं ना वो करते हैं बाइबल से ना, हमें नहीं पता आप नहीं किन नहीं आदमी की बाइबल बात से कर रहे नहीं, हैं। उन्होंने कुरान से मैं की तो है, बात कहता अच्छा हूं। आपने जो बात करनी है ना आप मुझे बाइबल के मुतल्लिक करें, ठीक है, कुरान पाक का मुझे नहीं नॉलेज। नहीं उसका नॉलेज की छोड़े, वो जो सूरत नहीं मरियम क्यों छोड़े भाई, एक चीज का पता ही नहीं, आप जो मर्जी बोलते रहेंगे हम मान लेंगे जैसे बैठे हुए। नहीं, नहीं, यार इन भाई को सूरत- कुछ समझाए यार। वो यार एक मिनट, सूरत मरियम का तर्जमा आपने पढ़ा हुआ है कुरान से? तारक साहब वो जब कह रहे हैं कि उन्होंने इस बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप क्यों ज़बरदस्ती उन पर इम्प्लीमेंट करें? पहले तो ये कि अभी इन्होंने ये जवाब दिया ना, कि अभी इन्होंने 2 मिनट पहले वो क्या जवाब दिया, तो उसका जवाब वो तो कुरान में भी वैसे ही लिखा हुआ है। वो जो क्या लिखा हुआ है कुरान में कि मुकद्दस माँ मरियम के ऊपर रूल कुदूस चढ़ गई है, क्या ना लिखा ना हुआ है? ना रूह कदूस हाँ। नहीं, मसाल है कि हमारे जो अल्लाह का है को वो फरिश्ता आया था, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है फूंक मारी की और क्या फर्ज मजा क्या कहते हैं यार, लेके वो अंदर दा मसीह बाहर कटो ना, ऐसे वजह से बैठे हैं सप हाँ। कटने वास्ते। हाँ जी वो अच्छा मसाल है क्या वो- लिखा हुआ है? तो पढ़ो आदम दे उत्ते आदम ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟਾਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਆ ਜਾਓ। यही मैं कह रहा ना कि ये तुसां ने ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ कड्ढिया ਹੈ, ਆਦਮ ਦੀ ਫਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? नहीं आदम तो एक और लहदा चल ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਦਮ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ, लैदा क्यों हुआ है? लैदा क्यों हुआ? तारक ਆਦਮ ਜੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਦਮ ਜੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ लेकिन इधर कुरान में लिखिया गया ना बकायदा, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਦਮ ਜੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ। फिर कुरान में ये गलती हुई है या ਫਿਰ क्यों ਨਹੀਂ लिखा ਗਲਤੀ हुआ है? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਹਾਜੀ ਉਹਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਫੂਕੀ ਏ। ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਇਹ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਏ ਕਹਿ ਹੋ, ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ- ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, वो तो ਉਹ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਚੜੀ ਏ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੀਏ? ਉਹਨੇ ਕੋਡਿਆ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਬਾਦ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਧਰੇ, ਪਰ ਚੜ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੜੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ये तुसें जेड़ा बाप भी पढ़ने मैंने वो थोड़ा पता है, मैं पढ़िया ये थोड़ा जिहा इसने ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। इसने को बदरूआ ना चक्कर आपना बदरू ਨਹੀਂ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੂਲ ਕੁਦਸ, ਬਦਰੂ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਲੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। नहीं वो ठीक है, तुसने गल अपनी जगह है। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਚੜ ਗਈ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਈ, ਚੜ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੇਚਦੀ ਏ ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਝੋ। क्योंकि ज्यादातर इसने मैं तुसें की चैप्टर सुनाना ना, मशाका 2 नंबर है, 2 नंबर पार्ट है कि जो अपने दाने हाथ में सितारे लिए हुए और सोने की 7वीं चिराग दानों में फिरता और ये फरमाता है कि मैं तेरे कलाम और तेरी मकसद और तेरा सब्र तू जानता है, और ये भी कि तू बुद्धों को देख नहीं सकता।
بدھو کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہمیں نہیں، تو نے ان کو آزمایا اور چھوتا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکتا نہیں، مگر مجھ کو تو اس سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلی کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو نکالیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن میں سے بھی نفرت ہے، جن کے کان ہوں وہ سننے کی روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اسے زندگی کے درخت سے اور جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ سمرن کی کلیسیا کو پیغام، سمرن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھا کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور جو زندہ ہوا، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تم دولت مند اور اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہمیں نہیں بلکہ شیطان کی حمایت ہے، اس کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں، اور جو دکھ سہنے کے اسے خوف نہ کر۔ دیکھ ابلیس سلطان بھائی ذرا انہیں پڑھنے دو ذرا، پڑھے جی طارق صاحب، پڑھے۔ اوکے، اچھا۔ تو گمن گلیسیا کے فرشتے کو یہ بھی لکھا کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں تو شیطان کی تخت گاہ میں سکون رکھتا ہے اور میں تیرے نام پر قائم رہتا ہوں۔ جن دنوں میں میرا وفادار شہید ان پتیسیا اس جگہ قتل ہوا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دونوں میں تم نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ اچھا، یہ آپ پڑھ رہے ہیں یسوع المسیح کے بارے میں، رائٹ؟ جی مشاقہ کی 2۔ یہ صحیح ہو گیا۔ آپ کا اس بات کو یقین ہے یہ جو لکھا ہوا یہ صحیح لکھا ہوا ہے؟ نہیں، میں تو اکثر اس طرح بائبل وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں، اس میں میرا سوال یہ نہیں ہے نا طارق صاحب، آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے ابھی کہا کہ اس میں کافی کچھ صحیح بھی لکھا ہوا ہے، یہ صحیح لکھا ہوا ہے کہ غلط لکھا ہوا ہے؟ میں جہاں تک اگر میں یہ نہیں کہہ سکتا صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کہہ سکتا، میں تو جس طرح پڑھ رہا ہوں مجھے تو اس میں پھر صحیح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، تو آپ کہیں نا کہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہے بائبل کا، وہ مرا، وہ زندہ بھی ہوا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، آپ اس کو مانتے ہیں؟ نہیں، وہ سر ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ کرنا چاہتے قرآن میں تو یہ لکھا ہے وہ نہ تو قتل ہوا اور نہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، سلیب دیا گیا، وہ تو قرآن میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جو تو بائبل جو کہتی ہے کہ یسوع المسیح مرے اور زندہ ہو گئے 3 دن کے بعد، وہ آپ مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے؟ میں تو ان کی تو ویسے وہ بات بھی نہیں مانتا کہ انہوں نے مردوں کا تو اتنا کام ہی نہیں کیا، مردوں کو زندہ کیا، وہ بھی 1-2 کو کیا انہوں نے، 1-2 کا ادھر ذکر ہے، اور 1-2 کوڑوں کا انہوں نے کیا، وہ اتنی انہوں نے پورا ہاسپٹل کھولا ہوا تھا۔ کوئی نہیں، صحیح ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ جب یسوع المسیح زندہ ہوئے تو قبروں کے اندر سے اور بھی قبریں پھٹی اور وہاں سے مردے باہر نکلے اور ساتھ چلنا شروع ہو گئے؟ ہاں، یہ بھی اس میں تھوڑا سا پڑھا ہے میں نے۔ تو وہ پورے کا پورا قبرستان ہی زندہ کر دیا۔ سر آپ بتائیں کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اس وقت یہ کام ہوا تھا؟ بلکہ وہ شہر کی طرف گئے ہیں، ادھر شاپنگ مال میں شاپنگ ہی کر کے آئے ہیں وہ تو۔ جب جا رہے تھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے کہ اتارے ہوئے تھے؟ نکلی تو گئے تھے، بھوک لگی تھی، روٹی شوٹی کھانی تھی، کپڑے خریدنے تھے، بچوں کو ملنا تھا۔ اچھا، یہ کیونکہ میں ذرا ان سے اپنا پوچھنا چاہ رہا طارق صاحب، آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ ایسا ہوا ہوگا؟ سر میں تو وہی کہہ رہا ہوں، میرا یقین نہیں، میں تو صرف اس طرح اس کو پڑھ رہا ہوں کہ اس کو یقین رکھ کے نہیں پڑھ رہا، ایک عام روٹین کے حساب سے ایک چیز پڑھ رہا ہوں، اور جس طرح آپ کہانیوں کی ایک بک پڑھتے ہیں آپ کو یقین رکھتے ہیں اس میں یہ کہانی سٹوری صحیح ہوگی۔ جی، میں یہ صرف کنفرم کرنا چاہ رہا تھا نا۔ آپ ایک ناول پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ناول آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ جی، ناول پڑھا بالکل۔ اچھا، میرے سے اتنے سوال آپ لوگوں نے کیے طارق صاحب، میرا آپ سے کوشچن ہی ہے، آپ نے قرآن پاک کو کوٹ کیا ہے کہ وہ ماں قاتل وہ ماں صلب، ٹھیک ہے، نہ اس کو قتل کیا گیا نہ اس کو صلیب پہ چڑھایا گیا، تو پھر کیا وہ طبی موت مرے؟ نہیں، وہ تو مرے تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ نے اٹھا لیے ہیں نا، ہم نے اسے اپنے پاس بنا لیا، اسی قرآن انہوں نے وفات نہیں پائی۔ جی، وفات نہیں پائی انہوں نے، یہ اب یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ جب اللہ نے اپنے پاس اٹھا